پہلے میں بھی عام لوگوں کی طرح یہی سمجھتا تھا کہ یار یہ بندہ الومیناٹی کا ہے، یہ بندہ کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے. پھر میرے تھاٹس بھی چینج ہوئے کہ یار ایسے ہی لوگ ہمارے پاکستان کو چاہیے. انٹرنیٹ ایج کے اندر میں کسی سے سب سے زیادہ انسپائر ہوا تو وہ یقیناً ریحان اللہ والا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بہت سارے پاکستان کے رورل ایریاز میں جو لوکل کیبلز تھیں ان پہ یہ ویڈیوز چلتی تھیں جس سے لوگ گھروں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. یہ ٹوٹل آئیڈیا جو ہے نا یہ ہمیں ریحان بھائی نے دیا تھا. ریحان والا کے ساتھ میں برطانیہ کا دورہ کر چکا ہوں اور وہاں چیمبر آف کامرس جہاں خود برطانیہ کے لوگوں کا داخلہ رابطہ اور وہاں کوئی پروگرام ایک خواب ہوتا ہے لیکن بڑے آسانی کے ساتھ انہوں نے وہاں ارینج کیا میرے لیے ایک پروگرام. اب میں نے بھی نہیں پڑھا ہوا تھا لیکن پھر میں نے بھی پڑھنا لکھنا شروع کیا تو میں نے ایک بات سنی. 6 سال گزر چکے تھے، ویڈیو کی کوالٹی بہت امپروو ہو چکی تھی، اسمارٹ فون آ گئے تھے، یوٹیوب کھل گیا تھا، لیکن ہم کسی وجہ سے کامیاب نہیں رہے ریحان اسکول کو امپلیمنٹ کرنے میں. لیکن اس کرنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ بہت سارے لوگوں کو یہ خیال آنا شروع ہو گیا کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے. تو آج آپ نے تختی آن لائن دیکھی ہوگی، وہ ریحان اسکول کی وجہ سے عدیل نے بنائی. عثمان چغتائی نے رائد افضل کو ہزاروں ویڈیو بنانے کے طریقے سکھائے، رائد افضل نے ہزاروں ویڈیو بنائی. تو رائد افضل اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے کرتے ہیں. رائد افضل خان پیشے کے اعتبار سے ایجوکیشن سائیکالوجسٹ ہیں اور ایک کمپنی کے ہیڈ ہیں جو سلیبس ترتیب دیتی ہے. رائد افضل ریحان اسکول کے ماڈل سے متاثر ہیں، اس حد تک کہ ان کی ویب سائٹ پر تعلیم کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے. الحمدللہ ہم اس لحاظ سے 2 لحاظ سے پاکستان میں اپنی فیلڈ میں لیڈ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ایجوکیشن کی لارجسٹ کلیکشن آف ویڈیوز پڑی ہوئی ہے. 6000 پلس ویڈیوز ہیں اور پورے ملک سے بلکہ انڈیا سے یو ایس سے لوگ ہماری ویب سائٹ پہ آتے ہیں وہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے. ان ویڈیوز میں کیا ہے؟ ان ویڈیوز میں مونٹیسری سے لے کے کلاس 5 پوری پرائمری ایجوکیشن کے جو 3+5 8 ہو گئے نا، یہ 8 ایئرس آف ایجوکیشن ہے، اس کے ہر سبجیکٹ کی ہر ڈے کی پڑھانے کا طریقہ ہے. یعنی ایوریج اسکول ڈیز جو پاکستان میں ہوتے ہیں وہ 160 ہوتے ہیں. تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کلاس 3 ہے اور اس کے 160 ڈیز اور ہر ڈے بچے نے 5 سبجیکٹس پڑھنے، 5 پیریڈ ہونے ہیں. تو 160 ڈیز کے لیے ہر ڈے کا وہاں پہ لیسنز موجود ہیں کہ ڈیلی بچے کیا پڑھیں گے. تو یہ ویڈیو جو ہے نا یہ ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. آپ ذرا اندازہ اس سے لگائیں کہ یہ کورونا گزرا ہے، اس میں ڈیلی کے تقریباً کو 3 لاکھ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھتے تھے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بہت سارے پاکستان کے رورل ایریاز میں جو لوکل کیبلز تھیں ان پہ یہ ویڈیوز چلتی تھیں جس سے لوگ گھروں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. یہ ٹوٹل آئیڈیا جو ہے نا یہ ہمیں ریحان بھائی نے دیا تھا اور اس میں انہوں نے ہمیں، آپ نے پہلے لوگوں سے ملوایا، اس میں ایک عثمان صاحب ہیں، عثمان چغتائی صاحب، ان سے ہمیں ملوایا، انہوں نے ہمیں گائیڈنس دی، ہمیں پورا سمجھایا. تو اس کی بیس کے اوپر ہم آج اس فیلڈ میں یعنی ویڈیو ایجوکیشن میں، ویڈیو کے تھرو ایجوکیشن میں پاکستان میں لیڈ کرتے ہیں. ریحان اسکول عام لوگوں کو موبائل کے ذریعے تعلیم دینے کا ایک بہترین تصور تھا جس کو دنیا نے تسلیم کیا اور جس کی بنا پر ریحان اللہ والا کو قطر، ملائیشیا اور دیگر ممالک میں ایوارڈ سے نوازا گیا. یہ یقیناً ریحان اللہ والا کی دور اندیشی تھی جو انہوں نے اس وقت بھانپ لی تھی جب یوٹیوب محض تفریح کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور لوگ موبائل فون پر ویڈیو گانے اور گیمز کھیلنے کو ترجیح دیتے تھے. موبائل فون سے کوئی تخلیقی کام لینے کا نہیں سوچا جاتا تھا. اگرچہ ریحان اسکول سے زیادہ لوگ تعلیم کی طرف راغب تو نہیں ہوئے، لیکن ریحان اسکول رائد افضل اور عدیل امتیاز جیسی شخصیات کے لیے مشعل راہ بن گیا جنہوں نے پاکستان میں آن لائن تعلیم کے حوالے سے انقلاب برپا کر دیا. اس اسکول کے اوپر مجھ کو ملٹیپل ایوارڈز ملے، ملیشیا میں ایوارڈ ملا اس کانسیپٹ کے اوپر کہ موبائل سے پڑھائیں گے. اس وقت تک کوئی کانسیپٹ بھی نہیں کسی کے دماغ میں تھا کہ کوئی پڑھا سکتا ہے موبائل سے.
اور میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے اسٹوپڈ فون، میں بولتا تھا کہ یہ اسٹوپڈ فون ہے، یہ اسمارٹ فون ہے، یہ اسٹوپڈ فون ہے، سستا ہوتا ہے، ہم اس میں ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈالیں گے۔ ایک بہت بڑے دنیا کے انسان تھے، اللہ میاں ان کو ان کی مغفرت کرے، انہوں نے 30 ملین لوگوں کو غربت سے نکالا ہے، میرے لیے وہ ہیرو تھے۔ ان کو جب انہوں نے دیکھا ریحان اسکول کا ڈبہ، تو وہ انہوں نے مجھ سے 5 فونز منگوایا کہ جی میں اس کے ذریعے لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ آہستہ آہستہ کانسیپٹ ریکگنائز ہوا، اور میں قطر کی کانفرنس میں، قطر کی ملکہ نے مجھے اپریشیٹ کیا، ڈو کے جو مالک تھے ہیں، پرانے CEO تھے عثمان، ڈو موبائل کمپنی ہے، جو مجھے ملتا تھا فون کا ڈبہ دیکھ کے پاگل ہو جاتا تھا کہ یار یہ کیسا کانسیپٹ ہے کہ کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ فون سے پڑھائیں گے۔ پھر میں UK گیا کانفرنس کے اندر، وہاں مجھے بہت اپریشیٹ کیا، وہاں میں ملالہ کے ابا سے ملا، ملالہ سے ملا، رچرڈ برانسن سے ملا، بہت لوگوں سے میری ملاقات ہوئی۔ پھر وہیں پہ مجھے خیال آیا کہ مجھے مسٹر بین سے پڑھوانا چاہیے، تو مسٹر بین تو میرے ہاتھ نہیں آئے، تو میں نے خود مسٹر بین بن کے پڑھانے کی کوشش کری۔ ویڈیو تو اچھی ہیں لیکن وہ وائرل نہیں ہوئی، تو فار سم ریزن ہمارا کانٹینٹ یہ وائرل نہیں ہوا۔ اگر کام آپ کوئی نیا شروع کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ نہ ہو، لیکن اس کی وجہ سے اور کام ہو جاتے ہیں جس کا آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ یہ کر جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی کام کرتے ہوئے آپ کو سوچنا کم چاہیے اور گھبرانا کم چاہیے اور کر دینا چاہیے، چاہے اس کے وہ مقاصد حاصل نہ ہو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی اور مقصد حاصل ہو جاتا ہے اس کا آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس سے یہ حاصل ہو جائے۔ عثمان چغتائی خاص طور پہ بہت کریڈٹ دیتا ہے کہ جی نہیں، بہت سارے لوگ اس لیے پڑھاتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ بات اس وقت چلانا شروع کری تھی جب یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ موبائل سے کیسے پڑھائیں گے۔ تو کیونکہ ہم نے یہ کانسیپٹ لے آئے تھے کہ ایجوکیشن موبائل کی طرح ہونی چاہیے، اگر ہم کامیاب پڑھانے میں نہیں ہوئے تو یہ پڑھانے میں، یہ سمجھانے میں ہو گئے کہ موبائل کے تھرو بھی پڑھایا جا سکتا ہے، اور لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا۔ تو پھر انہی کے آئیڈیا کو ہم نے لے کے چلے۔ ونس اگین ان کے ہی دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں عثمان چغتائی، انہوں نے ہماری ہیلپ کی، تو ہم نے گریڈ 6، 7 اور 8 کے لیے ٹوٹل ای لرننگ کا سسٹم بنایا ہے جو کہ ورلڈ کلاس ہے۔ یہ انہی کا آئیڈیا تھا، اور جب ہم نے یہ بنا لیا اس میں ہمیں 6-7 سال لگے، بلکہ ہر وقت ہی وہ ایوالو ہوتا رہتا ہے، ابھی بھی اس میں امپروومنٹس ہو رہی ہیں۔ اس میں بھی بچہ روز لاگ ان کرتا ہے اور اس کو آن لائن سارا کانٹینٹ ملتا ہے، انگلش، اردو، میتھ، سائنس، ہسٹری، سیوکس، ایون ہینڈ رائٹنگ، ایون قرآن قرأت سیکھنے کا۔ تو پورا سسٹم پورے ایکڈیمک ایئر کے لیے، گریڈ 6 کا پورا ایکڈیمک ایئر، پھر 7th، پھر 8th، اور جب بچہ اس کو کر رہا ہوتا ہے ایکڈیمکلی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے ارننگ کے کورسز بھی کر رہا ہوتا ہے، ای کامرس کے بھی، مثلا فوٹوگرافی سیکھ رہا ہوتا ہے، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سیکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ آئیڈیا بھی ٹوٹل ہمیں ریحان بھائی نے فلوٹ کیا تھا، جس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا، اور الحمدللہ آج ہم اس میں لیڈر ہیں پاکستان میں، اور شاید اس لحاظ سے ہم ایشیا کے تو لیڈر ہوں گے، کیونکہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں انٹل نے ہمیں یہ کہا ہے سب پروگرامز ایویلویٹ کرنے کے بعد کہ یہ ون آف دا بیسٹ پروگرام ہے۔ اس سے اور اس ای لرننگ سے بہت بڑی دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایوری ڈے ہنڈریڈز آف پیپل ہماری ویب سائٹ پہ آتے ہیں اور اس سارے کام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کا کریڈٹ آف کورس ریحان بھائی کو جاتا ہے۔ انٹرنیٹ اور بالخصوص سوشل میڈیا جیسے فیس بک کے آنے کے بعد سے دنیا فلیٹ ہو گئی ہے۔ کاروبار، گروتھ اور ترقی کے مواقع اب سب کے لیے یکساں ہیں، لیکن کسی بھی چیز میں ترقی اسی وقت ممکن ہے جب کولیبوریشن کے ساتھ کام کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ریحان اللہ والا فیس بک پر لوگوں کو ملاتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کریں۔
हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रेहान भाई लोगों को कनेक्ट करते हैं ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर मैं अभी रिकॉल करूं तो पिछले इतने सालों में 2 का तो मैंने आपको रेफरेंस दिया, उस्मान का और वसीम का, तो इतने सारे मज़ीद लोग हैं जो ये कनेक्ट करते हैं। तो अभी लास्ट इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम उसका मेरे जहन से निकल, तकमील उसका नाम था, को खातून थी, उन्होंने हमसे इन्होंने कांटेक्ट करवाया ना, तो वो यहाँ पे लिटरेसी पे काम करना चाह रहे हैं। तो जब मैंने उनको बताया कि भाई हम ये करते हैं, तो वो बड़ी हैरान हुई ना। उन्होंने कहा ये हम समझते थे कि पाकिस्तान में तो इस किस्म का सिलेबस लिटरेसी के हवाले से किसी का है ही नहीं, लो ये तो अब हर चीज़ यहाँ बना के बैठे हुए हैं। तो हमने तो टीम हायर की थी कि हम ये पूरा सिलेबस खुद बनाएंगे। रेहान भाई से मेरी पहली मुलाकात आज से कोई 8 साल कबल एक प्रोग्राम में हुई थी, और मैं उनसे जाके मिला था, अपना तारुफ बताया था, और मुझे याद है कि मेरी इस वक्त बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मेरा सेल्फी खिंचवाएं। और मैं जब उनसे जाके मिला, मुझसे जब मैंने उनको अपने इदारे का बताया तो मुझसे ज़्यादा खुशी से वो मिले, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और हमारी काफ़ी देर बैठ के बातचीत हुई थी, और ये 7-8 से पहले की बात है। ये बंदा इसकी वजह से जो एक सिनर्जी क्रिएट होती है ना, टीम वर्क जनरेट होता है, तो वो कितना इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, ह्यूमन कैपिटल कितना एडवांस होता है, कितनी उससे R&D में मदद मिलती है ना, डेवलपमेंट में मदद मिलती है, कितना उसका पाकिस्तान में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इससे ह्यूज टास्क, अगर आप इसके बारे में सोचें कि ये जब एक नया बंदा है इनके सामने आया ना, तो इन्होंने उसी वक्त सोचना शुरू किया कि ये जो मेरे थाउजेंड्स ऑफ लोग जिनको मैं जानता हूँ, इसको मैंने इनमें से किससे कनेक्ट करना है ना, इट्स अ ह्यूज टास्क। मेरा ख्याल है अगर रेहान को 2 अल्फाज में बयान करना हो कि रेहान अल्लाह वाला कौन है, तो 2 अल्फाज में बयान किया जा सकता है, पीपल कनेक्टर, लोगों को जोड़ने वाला। तो इसमें अगर इस बात को आप ले लें कि एक इंसान जो है वो पीपल कनेक्टर है, तो मेरा ख्याल है शायद कोई और इंसान दुनिया में बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं किया जा सकता कि उसने ये काम किया हो। मैंने एटलीस्ट अपनी सर्कल में नहीं देखा कि इतना बेहतर काम किया हो कनेक्शन के हवाले से, क्योंकि अमूमन ये होता है कि कोई रिक्वेस्ट आपको आती है, कोई कहता है यार मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसको कहूँगा इससे बात कर लो, लेकिन आउट ऑफ अ ब्लू कोई नहीं करता। जो रेहान के अंदर ये है कि यार किसी से बात से मिले, अगर जैसे मेरे से आज मिले हैं ना, तो मुझे 4 फ्रेंड वो ग्रुप बना के 4 ग्रुप में डाल देंगे, और उसमें कहेंगे यार इनसे बात करो, इनसे बात करो, इनसे बात करो। अब वो बात करें ना करें ये अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने उस शख्स से कनेक्ट कर दिया, ये समझते हुए कि इस शख्स का इससे ताल्लुक़ कोई बनता है, ये कहीं ना कहीं उसकी जर्नी में मौजूद हो सकता है। तो मेरा ख्याल है इस हिसाब से तो नो डाउट अबाउट ये कि रेहान का एक रोल है पीपल कनेक्टर। अभी भी मेरे ख्याल है सारे उनके नेटवर्क के अंदर में सारे लोगों से कनेक्ट हो चुका हूँ, उन्होंने कनेक्ट करवा दी हैं, फिर भी अब आती रहती हैं 2-3 डेली के हिसाब से। मैं समझता हूँ कि ये जो कनेक्टर किस्म के जो लोग हैं, रेहान अल्लाह वाला उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते, और लेकिन मैं क्या करता हूँ, वो रेहान अल्लाह वाला ने लोगों को बताया कि जी मैं क्या कर सकता हूँ और मुझसे इनको क्या फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ गए जो रेहान अल्लाह के रेफरेंस से जुड़े, बहुत सारे ऐसे दोस्तों के रेफरेंस से जुड़े जो मुझे नहीं जानते थे, मैं उन्हें नहीं जानता था। तो ये कनेक्टिविटी जो है ये एक बहुत बड़ा काम है जो रेहान अल्लाह वाला कर रहा है। आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ है। ये मशहूर फ़िक्रा जितनी जल्दी किसी की समझ में आ जाए उसे उतनी ही जल्दी आगे बढ़ने में मदद मिलती है, और जिनकी समझ में ये बात आ गई है वो इसके समरात से मुस्तफीद हो रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट के आम होने के बाद ये बात रेहान अल्लाह वाला लोगों को समझा रहे हैं कि जितनी जल्दी आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को बदलेंगे, अपने दोस्त बदलेंगे, आप उतनी ही जल्दी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे जो आपको आगे ही लेकर जाएगी। और रेहान अल्लाह वाला की ये बात समझाने वालों में उस्मान चुगताई भी है। मेरी कामयाबी इंटरनेट एज से मुंसलिक है। जिस तरह आज की दुनिया में बहुत सारे लोगों की कामयाबी इंटरनेट से मुंसलिक है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और अमेरिका के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, तो ये ग्लोबल एज का कमाल है। तो जब ग्लोबल एज की बात हो तो आप किसी से इंस्पायर होने की बात करते हो तो आपको एक ग्लोबल
पर्सनैलिटी की ज़रूरत है, जो आपको दुनिया से रोशनास करा सके, जो आपको बता सके कि बदलती दुनिया के तकाजे क्या हैं। वो रसूल खुदा ने फरमाया कि मोमिन का हाथ वक्त की नब्ज़ पर होता है। तो ऐसा शख्स जो वक्त की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखता हो, जिसको दिखता हो कि आने वाली दुनिया कैसी होगी, जिसको दिखता हो कि ज़माना कैसे बदल रहा है और हमें उस बदलते ज़माने के मुताबिक अपने आप के अंदर, अपने बिजनेसेस के अंदर क्या तब्दीली लेके आनी है। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा शख्स ढूंढना आज से 20 साल पहले बहुत मुश्किल था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको ऐसा शख्स मिल जाता है तो शायद ये कारखाना कुदरत का कोई प्लान है, उसका कुछ मंसूबा है। तो मुझे अगर इंटरनेट एज के अंदर मैं किसी से सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ तो वो यकीनन रेहान अल्लाहवाला है। जब मैं इंटरनेट की फील्ड में आया तो तब बहुत ही कम लोग थे जो हमारी इंस्पायरेशन बन सकें, या होंगे तो उनसे कनेक्शन नहीं था, इतने ज़्यादा सोशलाइज नहीं थे। बहरहाल सलीम गौरी साहब, उमर सैफ साहब, इन्होंने बड़ा इंस्पायर किया पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो। लेकिन लेटर ऑन जब रेहान अल्लाहवाला के बारे में मेरी थॉट्स चेंज हुए, पहले कुछ और थॉट्स थे। पहले मैं भी आम लोगों की तरह यही समझता था कि यार ये बंदा इल्यूमिनाटी का है, ये बंदा कोई यहूदियों का एजेंट है, तो मैं भी यही समझता था। लेकिन लेटर ऑन जब उन चीज़ों के साथ अपना वास्ता पड़ा तो फिर मेरे थॉट्स भी चेंज हुए कि यार ऐसे ही लोग हमारे पाकिस्तान को चाहिए। अच्छा, जिन लोगों से मैं इंस्पायर था उनके अंदर और रेहान भाई के अंदर डिफरेंस क्या है? वो लोग और हम लोगों के दरमियान में गैप है। वो इतनी आसानी से हमारी एक्सेस नहीं है उन तक। अगर मैंने उनसे कोई बात करनी है, कुछ पूछना है या उनकी ज़िंदगी से इंस्पायर होना है तो मैं नहीं हो सकता। पिछले दिनों मैंने एक डॉक्टर उमर सैफ साहब की पोस्ट पे कमेंट किया कि उन्होंने अपने बेटे की सक्सेस शेयर की हुई थी। तो मैंने कहा काइंडली आप हमारे साथ चीज़ें शेयर किया करें कि जो पेरेंट्स हैं और समझ लो न्यू पेरेंट्स हैं तो उनको एक गाइडेंस मिल सके। बट उन्होंने टोटली निगलेक्ट किया। डेफिनेटली उनकी अपनी मसरूफियत होगी। अगर यही सवाल कोई रेहान अल्लाहवाला से करता तो आई एम श्योर कि वो एक वीडियो डेडिकेटेडली बना के यूट्यूब पे डाल देते या फेसबुक पे डाल देते। तो ये जो इंस्पायरेशन है, ये वाली इंस्पायरेशन हमारी यूथ को चाहिए कि एक आम बच्चा, एक आम स्टूडेंट, एक आम ग्रेजुएट वो ये फील करे कि यार ये हम में से है और अपनी लाइफ को उनसे रिलेट कर सके। आज तक की जो इंस्पायरेशंस थी हम उनके साथ खुद को रिलेट नहीं कर सकते थे। वो एक बहुत ही बियॉन्ड चीज़ हमें लगती थी कि यार ये कोई ऊपर की चीज़ है, हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते या उन तक हमारी एक्सेस नहीं है। इंटरनेट के फरोग ने पूरी दुनिया को फ्लैट या मुतवाज़ी कर दिया है, जिससे एक आम शख्स के लिए ये आसान हो गया है कि वो किसी दूसरे मुल्क का दौरा किए बगैर अपने ही मुल्क में रहते हुए कारोबार कर सकता है। 2007 में उस्मान चुगताई को ये बात समझ आ गई जो रेहान अल्लाहवाला अमली तौर पर 1999 में कर चुके थे। जिस दुनिया के अंदर आज से 20 साल पहले जब लोग अपने शहरों की बात करते थे, जब लोग अपने एरियाज़ की बात करते थे, वहाँ पर एक शख्स ग्लोबल झंडा लेके दुनिया में घूमता था। तो मुझे इन्होंने 2007 के अंदर बताया कि भाई अगर आप पाकिस्तान में भी हो तो आप अमेरिका के अंदर एक कॉरपोरेशन रजिस्टर करवा सकते हो। उन्होंने उस वक्त मुझे 2 पेपर दिए जिनके अंदर पूरा प्रोसीजर था कि एक शख्स पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिकन कॉरपोरेशन कैसे रजिस्टर करवा सकता है। तो मेरी कामयाबी का सफ़र वहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया, देखना शुरू किया। मुझे शुरू में लगा कि इनके दिमाग में कुछ झोल है, ठीक है, कुछ न्यूरॉन्स जो हैं उनके अंदर कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे एबनॉर्मल हैं। लेकिन जब मुझे लगता गया कि नहीं, इस शख्स के न्यूरॉन्स जो हैं हमें एबनॉर्मल इसलिए लगते हैं कि ये तो मुस्तकबिल में रहता है, ये आज के ज़माने का तो इंसान ही नहीं। हमें एबनॉर्मल इसलिए लगता है कि हम आज के पैमाने के मुताबिक इसको नापते हैं, इसको तोलते हैं, इसलिए हमें ये एबनॉर्मल लगता है। ऐसे पागल लोगों की तो पाकिस्तान में कमी रही है। ऐसे पागल लोग पाकिस्तान में अगर आएंगे, रेहान भाई जैसे लोग,
तो मैं देखता हूँ पाकिस्तान तरक्की कितनी जल्दी और कितनी रैपिडली करता है। तो ऐसे पागल लोग जो एक्चुअल रियल लोग हों, जो रियल एसेंस हो हमारी कौम का, हमारी यूथ का या हमारी लीडरशिप का, उन लोगों की ही कमी है। हमारे यहाँ बनावट बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ चीज़ों को इस तरह से जिसको कहते हैं फैंसी बनाया जाता है कि उनके अंदर रियल एसेंस नहीं रह जाता। तो मैं कहता हूँ ऐसे अगर पागल लोग कहते हैं और वो सही के पागल है, और ऐसे पागल लोगों की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसे पागल होना चाहिए। दो 2010 में अपने ऑफिस से रिटायरमेंट लेने के बाद रेहान अल्लाहवाला अपना वक्त लोगों में इंटरनेट और सोशल मीडिया के मुफीद इस्तेमाल के लिए सर्व करते, लोगों को ये समझाते कि अपने से मुख्तलिफ लोगों के साथ नेटवर्किंग करने से आप अपने हालात बदल सकते हैं। रेहान अल्लाहवाला की इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए तबलीग सिर्फ आम आदमी तक महदूद नहीं थी, बल्कि इनकी कोशिश होती कि आम इंसान से लेकर मुल्क के वजीर आजम तक हर एक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाए। मुस्तफा कमाल पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन हैं। मुस्तफा कमाल की रेहान अल्लाहवाला से मुलाकात 2012 में मुनक्किदा स्मैक सोशल मीडिया अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई, जहां रेहान अल्लाहवाला को कराची के नौजवानों से खिताब करना था। इसके बाद रेहान अल्लाहवाला और मुस्तफा कमाल के दरमियान राबते का सिलसिला चल निकला। I think it was 2008-9 when I was a mayor, and I think I met him first time there in एक्सपो सेंटर में। कोई तकरीब थी, शायद कोई यूथ की कोई तकरीब थी, मैं वहाँ पे इनवाइटेड था, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई। और मुझे याद है कि बजिया फातिमा सुरैया बजिया इनके बारे में बहुत बात करती थी, और वो कहती थी कि मुझे एक बच्चे से मिलवाना है, हम भी उनके बच्चे ही थे एक तरह से। तो फिर वो बजिया के साथ भी शायद हमारी मुलाकात हुई। बट आई रिमेंबर द फर्स्ट मीटिंग, आई थिंक इट वाज इन एक्सपो सेंटर, 2008 टाइम की बात है। रेहान अल्लाहवाला के साथ चंद मुलाकातों में वो सोशल मीडिया की अहमियत को बखूबी समझ गए, और यही वजह है कि इनकी पार्टी अब सोशल मीडिया के जरिए तेजी से मकबूलियत हासिल कर रही है। यही नहीं, मुस्तफा कमाल अपनी पार्टी के मंशूर को पूरे पाकिस्तान के लोगों तक ऑनलाइन इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा रहे हैं। इसमें दो राय हो नहीं सकती, और दुनिया में बड़ी बड़ी कैंपेन्स चली हैं। सुपर पावर्स जो सुपर पावर हैं इकोनॉमी में और बड़े ममालिक, उनकी तो इलेक्शन कैंपेन्स तमाम जो है वो इस तमाम सोशल मीडिया और फेसबुक पे डिपेंडेंट होकर रह गई है, और वो उसी से उन्होंने जो है वो अपना पूरा क्लाउड बनाया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है, और पाकिस्तान में अभी भी ये अंडर यूटिलाइज है, इसको बहुत और अच्छी तरह यूटिलाइज होना चाहिए। रेहान अल्लाहवाला की सोशल मीडिया के हवाले से तरबियत किसी एक सियासी पार्टी के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि तमाम सियासी पार्टियां इस प्लेटफॉर्म का मज़बूत इस्तेमाल करें, ताकि अवाम तक हर पार्टी का मंशूर सरगर्मियां बेहतर अंदाज से पहुंच सकें। न सिर्फ ये, बल्कि अवाम भी अपने सियासी कायदीन और ओहदेदारान से राब्ता रखें और उन्हें दरपेश मसाइल से आगाह करते रहें। अवाम की बेहतर अंदाज से खिदमत के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नागुज़ीर है। इस ज़िम्न में रेहान अल्लाहवाला ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ पार्टियों के साथ काम भी किया है, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त जमात इस्लामी है, जमीयत उलमाए पाकिस्तान फे और पाक सरजमीन पार्टी भी शामिल हैं। रेहान अल्लाहवाला ने 2011 में पीटीआई कराची की लीडरशिप के साथ सोशल मीडिया से मुताल्लिक रिकमेंडेशंस दी। इस इलाके के जमात इस्लामी और दीगर सियासी पार्टियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुताल्लिक 2010 और 2011 में वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाए, जिसमें सोशल मीडिया के हवाले से तफसीलन आगाही दी गई। रेहान अल्लाहवाला की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में 5000 नए इलेक्टेबल लीडर्स तैयार करे। हम ये देखते हैं कि जो हुकूमत इक़्तिदार में आती है, हमें काबीना में वही चेहरे देखने को मिलते हैं जो पिछली हुकूमत के दौर में थे। इसका मतलब ये समझ आता है कि हमारे पास अच्छे इलेक्टेबल लीडर्स नहीं हैं। यही वजह है कि हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नई लीडरशिप तैयार करना चाहते हैं, ताकि वो अवाम की मुश्किलात इलेक्ट हुए बगैर ही हल कर दें। और इसी मकसद के लिए रेहान अल्लाहवाला ने इंसान पार्टी की बुनियाद भी रखी है। इंसान पार्टी एक सियासी पार्टी के रूप में दरअसल एक इंस्टीट्यूट है, जहां लोगों को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दी जाती है। इंसान पार्टी सियासी अमल का हिस्सा बनकर आम इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी।
जो चीज इंसान पार्टी को बाकी सियासी पार्टियों से मुमताज करती है वो ये है कि इंसान पार्टी अपने कारकुनान की आबियारी जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग होकर कर रही है। इंसान पार्टी में शैडो मेयर और शैडो मिनिस्टर के ओहदे बनाए गए हैं और कोई भी उन ओहदों पर फाइज हो सकता है। ये शैडो मेयर और मिनिस्टर आवाम से सोशल मीडिया के जरिए राबता कायम रखेंगे ताकि उनके मसाइल को सुनकर वो हल कर सकें। मिनिस्टर की जिम्मे हफ्ते में 3 दिन पॉडकास्ट और 3 महीने बाद कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करना होती है। इस प्रैक्टिस से एक शैडो मेयर और शैडो मिनिस्टर को अपनी फील्ड में तजर्बा हासिल होता है जो इसे मुस्तकबिल में इलेक्टेबल बनने में मदद देता है। शैडो मेयर अपने इलाके में लोगों की आगाही के लिए बिलबोर्ड लगाता है, अपना बिजनेस कार्ड लोगों में तकसीम करता है ताकि लोग अपने मेयर और मिनिस्टर से मानूस हो जाएं। रेहान वाला के साथ मैं बरतानिया का दौरा कर चुका हूँ, कई बार पेशावर भी तशरीफ़ लाए हैं, हमारे घर में भी रहे हैं। एक मुनफरद शख्सियत है, अपनी ज़ात में एक जिहान है, वो रिवायात का ग़ुलाम या असीर नहीं है, हर लम्हे को वो बेहतर इस्तेमाल करता है। मैं उनके हमरा बरतानिया गया था और वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जहाँ ख़ुद बरतानिया के लोगों का दाखिला, राबता और वहाँ कोई प्रोग्राम एक ख्वाब होता है, लेकिन बड़े आसानी के साथ उन्होंने वहाँ अरेंज किया मेरे लिए एक प्रोग्राम। बरतानिया में एक बहुत बड़े प्रोफेसर, वो दुनिया भर के बड़े यूनिवर्सिटियों के विजिटिंग प्रोफेसर हैं, जनाब रिहान ने उनसे भी बड़ी आसानी से टाइम लिया और फिर वहाँ मैंने 2-3 सवालात उनसे किए कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है, इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे। तो उस प्रोफेसर ने जवाब दिया कि दहशतगर्दी और लाक़ानूनियत, जराइम दुनिया भर में हर कहीं होता है, लेकिन बरतानिया में भी ऐसा ही है, लेकिन जहाँ वाक़या होता है उसी जगह दफनाने की कोशिश होती है और मीडिया के ज़रिए उसको नहीं फैलाया जाता। तो अगर आप लोग दहशतगर्दों की कार्रवाई को फैलाने और आम करने और मुश्तहर करने के बजाय उसी गली कूचे में दफन करने की कोशिश करेंगे तो इससे दहशतगर्दों की बड़ी हौसला शिकनी होती है। तो मैं वापस आया, इधर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें मैंने यही तजवीज़ रखी जिस पर अमल किया गया और उसके बाद यहाँ उसके नतीजे में 50% दहशतगर्दी में कमी हुई है, एक नफसियाती कामयाबी हुई। तो ये भी रेहान अल्लाह वाला साहब का कमाल था कि उन्होंने मेरे दौरे में ऐसी शख्सियात के साथ मुलाकातें अरेंज की थी जिनको मुझे नहीं बल्कि मेरी पूरी कौम को, हमारे पूरे मुल्क को फ़ायदा हुआ। यकीन करें कोई अगले कोई 10 मिनट में अंदर कोई 40-50 लोग आ गए। मुझे समझ में नहीं आता ये शख्स क्यों चाहता है कि लोग मुझसे कांटेक्ट करें। सवाब या गुनाह का अमल बहुत ज़्यादा रेहान को जाएगा, तो ये रेहान ने खुद फैसला करना है कि इसका सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा उनको जो उन्होंने मुझे ऐसे बंदे को इस काम पे लगा दिया। जिस गली में, जिस मोहल्ले में रहते हुए बड़ा अरसा हो चुका था, उस गली से लोगों ने निकल के आगे पूछा, हमें बड़ा फख्र है जी कि आप हमारे टाउन में रहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लाए, इनसे मिल के नहीं, इनकी फेसबुक देख के कि भाई देखो ये बंदा तो नहीं घबरा रहा है, ये बात भी सही कर रहा है, फलानी चीज़ भी कर रहा है। मैं तो खुद हैरान हो जाता हूँ जब ये लोगों को मेरे साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये इनको क्या फ़ायदा होगा इससे। रिहान भाई के अंदर जोड़ने वाले लोग मिलते हैं, ऐसे लोग आपको मिलता है दोस्त जो आपको मोटिवेट करता है कि आप कुछ भी कर सकते हो।